Back to my channel. Today we will learn center of mass of different shapes of body, and we will learn it one by one. Watch my complete video and subscribe my channel. Hi guys, welcome back to my channel GLearn Mathematics. आज हम लोग सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का चैप्टर 7 का चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास होता क्या, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ, सपोज देयर इज अ बॉडी एंड देयर आर सो मेनी पॉइंट, सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट, इनके मासेस m1 है, m2 है, m3 है and so on. Suppose करो mn तक है. When this body move, when there is a motion, तो कौन सा इसका पॉइंट है जिसके मोशन करने के बाद इस बॉडी में मूवमेंट हो? तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे we are supposed to whole mass is concentrated. Suppose this body move, we are supposed to whole mass is concentrated at the point, and that point is called center of mass, CM. Suppose there is a force and this body is accelerated motion, then force is equal to m into a. What is acceleration? ACM means acceleration of center of mass. What is center of mass? Where the whole masses of the system is assumed to be concentrated. And one another term is center of gravity. Center of gravity. What is center of gravity? Center of mass means whole mass is concentrated at a particular point where the movement takes place is called center of mass. Center of gravity. What is center of gravity? Suppose the body is like that and there is a downward force, weight is always acting, that is mg. The point where the mg is acting is called the center of gravity. Center of gravity. This is, what is this? This is the weight. This is weight. This point is called center of gravity. Center of mass and center of gravity at some point is same when there is a uniform gravitational acceleration, means g नहीं change हो रहा है. When g is not changes, when uniform gravitational acceleration, center of mass, location, not center of mass, location of center of mass is equal to center of gravity. This is the definition of center of mass and center of gravity. Why we learn center of mass? No, center of mass क्यों पढ़ते हैं? Suppose this is a marker and this is moving like that. This is moving like that. There is a motion like this one, this one, this one. If we have to calculate about its motion, it is very difficult to calculate each and every point motion. In that case, what we will do? We will locate the center of mass. Suppose there is a point where is the center. What is the motion of center of mass? Center of mass motion is almost like projectile motion. रोटेशनल डायनामिक्स में
जहाँ पे हमारा आप देखोगे कि बहुत सारे टू टाइप के सेंटर सिस्टम आएंगे हमारे पास, एक डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम, एंड द थर्ड सिस्टम वेरिएबल मास सिस्टम, वो भी हो सकता है। तो हर सिस्टम में जो जब ये पार्टिकल, जब सपोज करें ये हेवी पार्टिकल है, इसके हर एक पार्टिकल, इसके हर एक पॉइंट P1 P2 से लेके Pn P इनफाइनाइट तक जो पॉइंट है, आप ये जैसे इसे मूवमेंट होगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, it is difficult to analyze the motion of each and every particle of the system. In that case, what we will do, we will go with center of mass. तो in that case हम लोग क्या किस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास, अब देखो हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इससे पहले पढ़ा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमारा क्या, हम लोगों ने शुरू से बेसिक, जब हमने बेसिक स्टार्ट किया था उसी समय हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। ये है हमारा इनर्शियल एक्स वाई सेट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सपोज this point has a position vector PR, so its position vector PR with respect to which frame? With respect to the earth frame or inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Suppose there is another particle, its position vector is PR. What is its position vector with respect to? There is with respect to P and P, we can write it vector R minus vector R1. Suppose if we differentiate P vector by dt, we will get d by dt vector R minus vector R. The velocity of this point with respect to the inertial frame of reference is dr by dt, and velocity of this point with respect to r1 is d by dt, d vector, ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, d vector r minus d vector r1 by dt. Then there is a difference in velocity of this with respect to this, and then this with respect to the inertial frame of reference. As same as we will learn in rotational dynamics detail about the center of mass reference frame. Suppose when we will do the position of elevator, or suppose there is a person moving in one car C1 and C2, there is a velocity 60 km per hour. This is 80 km per hour. What is the velocity velocity of C1 with respect to 2 is a 20 km per hour, and velocity of C1 with respect to inertial frame of reference is a 80 km per hour. Whenever we are talking about the velocity of car or any body, we are generalized it with respect to the inertial frame of reference. But when we see the in rotational dynamics, center of mass reference frame is very essential. When we are talking about the linear momentum of the system of a mass, suppose there is a system having the mass m1, m2, m3, m4. When we are talking about the linear momentum of the system, we are talking about with respect to its center of mass reference frame. We can designate it like P tilde is equal to
m into vcm. What is this? Is the linear momentum with respect to c. इसलिए सेंटर ऑफ मास सिस्टम का पढ़ाई हमारा बहुत जरूरी है. व्हेन हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में, उनके रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे जब हम गाड़ी के कार के सिस्टम में मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस, तो उस समय भी हमारा सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम बहुत जरूरी है. देयर आर सो मेनी सिस्टम इन प्लेन. जब हम एरोप्लेन के बारे में, उनका रोटर के मूवमेंट, कैसा मूवमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वहां भी हमारा सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम हर जगह हमारा वहां पे काम होने वाला. और इसका यूज करके हम रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड वी कैन सॉल्व इट. अब हमको इसके बारे में डिटेल ये सारा हम अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. सपोज ये डिस्क्रीट मास है, डिसकंटिन्यूअस मास है. अभी हमारा ये एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं. और क्या क्या चीज यूनिफॉर्म है, हाउ द वेरिएशन सेंटर ऑफ मास पाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ मास कैसे हो रहा है, वेदर दिस इज लीनियर है या एरिया वाइज है या वॉल्यूम वाइज है, कैसे इसका मूवमेंट हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है. इसको 2D में हो रहा है या 3D में हो रहा है, इस बात को देखेंगे. मास डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, वो देखना इंपॉर्टेंट है. और जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो ये सारा कुछ अगर हमें पता है तो हम लोग आसानी से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं. सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके उस सिस्टम पे लगने वाले फोर्स या उस पर टॉर्क निकालना होगा या कुछ भी हम इस तरह का होगा, तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं. हम लोग देखेंगे लैटर ऑन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में, अगर वहां पे जितने भी टॉर्क होंगे तो पूरे टॉर्क जो है इस पॉइंट पे 0 होगा. कैसे होता है वो हम समझेंगे. सपोज ये हमारा एक्स वाई फ्रेम है, ये m1 है, ये m2 है, ये यहाँ पे हम रखते हैं m3. m1 का कोऑर्डिनेट का मतलब है कि सपोज ये डिस्टेंस, इसको x1 y1 करते हैं, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है. हमने x1 y1 अभी हम लोग z का नहीं लिया है हमने, बिकॉज ये xy प्लेन की बात कर रहे हैं, तो z वाला जो सिस्टम है वो क्या है, 0 है ही नहीं. तो हम लोग अब इस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं. सेंटर ऑफ मास पहले हम लोग XCM का निकालते हैं. XCM मीन्स x की तरफ x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा. इस तीनों, ये 3 मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ, कहीं ना कहीं यहाँ, इन तीनों के बीच में होगा. समटाइम ये अवे फ्रॉम द इस एरिया के बाहर होता है, तो वो केसेस वो अलग से हम लोग डिटेल करेंगे. तो ये XCM में क्या होगा, m1 इंटू डिस्टेंस क्या है x प्लस ये हमारा x1 है, ये m2, ये x2 है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये x2 है. सिमिलरली ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x3 है, तो m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस. इसको अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मिटाते हैं, क्योंकि शायद ये कैमरा में आ नहीं रहा होगा. तो हम लोग XCM को क्या लिख सकते हैं, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 m2 m3. ये हम लोग वेटेड वाले में, वेटेड मीन एवरेज वही चीज है, सेम चीज है, उसमें हमने पढ़ा. बट फिजिक्स में आपको मोशन, डायरेक्शंस, लगने वाले फोर्स, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल, टाइम कैसे वेरिएशन,
ग्रेविटेशन का क्या वेरिएशन है ये नहीं है, एट व्हाट टाइम हो रहा है, कौन से डायमेंशन में हो रहा है, इन सारी बातों का ध्यान देखना हो। ये हो गया हमारा एक्सियम। हम वाईसीएम कैसे निकालते हैं? वाईसीएम में सेम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस z दिया नहीं है, zcm क्या होता है? 0। तो हमारा तीनों आ गया एक्सीएम, वाईसीएम, जेडसीएम, ये तीनों वैल्यू आ गया हमारा डिसकंटिन्यूअस मास सिस्टम के। सपोज अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक्स वाई सिस्टम है, हमेशा सिस्टम को समझ में याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में अगर है। एक्स वाई सिस्टम है, यहाँ पे मास है m1 1 kg, यहाँ पे मास है m2 2 kg। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है और ऐसा दे दिया इस दोनों के बीच में 2 मीटर। तो टोटल इसका पोजीशन क्या होगा? 3,0 3,0 यानी 2 + 1 3 होगा और इसका पोजीशन, तो इसका क्या होगा? वाई सीएम क्या होगा? 0, क्योंकि वाई में इसका कुछ ओरिएंटेशन नहीं है, तो वाई सीएम इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज एक्सीएम? एक्सीएम इसका क्या होगा? m1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम m1 का वैल्यू 1 kg है, हम डाल देते हैं 1, m2 का वैल्यू 2 kg है, हम लोग डाल देते हैं 6, तो ये क्या हो गया? 2 + 1 3 यानी 7/3। तो ये हमारा ये क्या हो गया हमारा? क्योंकि यूनिट हमारा मीटर में हमने लिया है, तो ये क्या गया? मीटर। तो एक्सीएम का वैल्यू हो गया 7/3 मीटर। तो सिंपल एक्स प्लेन में हमारा ये मास सिस्टम है। अब देखो, अब हम लोग एक्स वाई सिस्टम में करते हैं। सपोज सबसे पहले क्या करना है, ये समझना है कि कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो हमारा अब ये है कि अब हमारा मान लो कि मास है m1 बराबर 1 kg और इसका पोजीशन लिखा हुआ है 1,2। यहाँ पे है m2 बराबर 2 kg और इसका पोजीशन लिखा हुआ है 3,5। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ये पोजीशन कितने पे है? 1 मीटर पे, और इसकी पोजीशन ये जो लिखा रहता है व्हाट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, with respect to inertial frame of reference, we have to remember this thing very well। तो ये पॉइंट है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो निकालते कैसे हैं? तो m1 का वैल्यू 1 kg है, 1 क्रॉस 1 प्लस हम लोग अभी एक्सीएम निकाल रहे हैं, तो x वाला डिस्टेंस देखेंगे, प्लस 2 क्रॉस 3, मास का वैल्यू 2 + 1 3 हो गया 7/3। सिमिलरली वाईसीएम क्या होगा हमारा? अब देखो ये डिस्टेंस क्या है? 2, मास 1 है 1 क्रॉस 2, ये डिस्टेंस क्या है? 5, मास 2 है 2 क्रॉस 5 एंड टोटल मास 3 है 12। 10 + 2 12, 12/3 इज इक्वल टू 4। दिस इज मीटर में है ये हमारा, ये भी मीटर में है। और जेडसीएम क्या होगा? व्हाट इज जेडसीएम? जेडसीएम बराबर 0। तो ये है हमारा, हम इससे इस तरह से निकाल सकते। अब देखो बहुत सारे जो आप HC वर्मा देखोगे, इरोडोव देखोगे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस सिमेट्रिक मास सिस्टम पे। सिमेट्रिक मास सिस्टम जो कहीं भी कोई सिमेट्रिक बॉडी है उसका, अब मान लो हम लोग भी एक्स वाई प्लेन से चल रहा है। सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब हमारा इसका मास ये m है, हर पॉइंट पे मास m। हम लोग क्या करते हैं इन दैट केस? अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, जहाँ पे कोई एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो, यहाँ पे आप x एक्सिस, इसको आप y एक्सिस, और इस पॉइंट को आप क्या करो? ओरिजिन। और ये डिस्टेंस अब 1 मीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टेक ओरिजिन
origin at one point, और वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑरिजिन बनाया, एक्स एक्सिस वाई। अब देखो ये 1 मीटर पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। ये यहां से 1 है, ऊपर भी 1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1। ये वाई एक्सिस पे 1 है, इसका क्या होगा, 0,1। अब ये हमने बनाया स्क्वायर। अब इसके सेंटर ऑफ मास क्या होंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक्सियम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये मास है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। ये मास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक है। सिमिलरली ये मास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये मास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, क्योंकि इसका x वैल्यू क्या है, 0। हमें एक्सियम निकालना है और टोटल मास हमारा क्या है, 1 2 3 4 यानी 4m। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2m/4m। 2m/4m यानी हाफ। यानी कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, हाफ मीन्स 1/2। यहाँ पे इसका हमारा एक्सियम। अभी वाईसीएम हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो ये हमारा आया एक्सियम। तो हाफ मीटर या जो 1 मीटर में लिया तो हाफ मीटर, ये एक्सियम है। वाईसीएम का भी हमने यहाँ पे खाली रखा है। फिर वाईसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने फाइंड आउट किया। अब वाईसीएम ऑफ दिस सिस्टम, तो क्या हो गया, m क्रॉस 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। वाईसीएम में y कोऑर्डिनेट देखना, प्लस m क्रॉस 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m क्रॉस 1, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m क्रॉस 1, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, अपॉन 4। तो ये क्या आ गया, ये भी हमारा हाफ। यानी कि स्क्वायर की या साइमेट्रिक बॉडी में, साइमेट्रिक सिस्टम में, जैसे कि स्क्वायर में चारों साइमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पॉइंट ऑफ सीएम। अब देखो, अगर स्क्वायर का पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग क्यूब का फाइंड आउट करते हैं। अब हम आते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी पे, इसको हम लोग करते हैं। और क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत बार नीट में, 1-2 बार जी मेन में ऐसे आए हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है हमारा। और हमें सेंटर ऑफ मास, क्यूब का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। क्यूब सीएम क्या, अगर इसके बीच का डिस्टेंस a दिया हो एंड हर पॉइंट पे मास m है। अभी मैं सब में m ले रही हूँ, कहीं पे m भी हो सकता है, कहीं पे 2m हो सकता है, 3m हो सकता है। मैं समझाना है मेरे को, तो इसलिए मैं सबको mm ले रही हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं हो और आपको समझ में आ जाए कि अगर साइमेट्रिक सिस्टम है तो उसके सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, ओरिजिन लिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये ऊपर क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस की तरफ। तो ये अगर a मीटर का है क्यूब का साइड, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, देखो ये ऊपर की तरफ है यानी जेड एक्सिस पे है, तो इसका y वैल्यू क्या होगा, ये हमारा, ये है, ये हमारा x एक्सिस पे है, y का वैल्यू 0 है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a0a। अब हम लोग इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, a, y भी a, x भी a एंड z क्या है, यहाँ पे 0 है। और इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 0, a, 0। हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे a, 0। अब देखो, इससे ऊपर जाते हैं, ये हमारा z वैल्यू है ना, ये हमारा z वैल्यू है, y वैल्यू है, और x वैल्यू इसका क्या है, हमारा 0 है, इसी पॉइंट पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, 0, a, a, यानी
कि हमने क्या किया, ये y का a पॉइंट पे है तो a पॉइंट हो गया, और ये z ऊपर की तरफ डिस्टेंस a है तो a हो गया, और x का पॉइंट क्या है 0 है तो ये हो गया 0। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या है x 0 y 0 बट z क्या है a है। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट में देखो x भी है y भी है, और यहां से हम देखते हैं x और y है ना, x है y है और z भी है, क्या ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो x y और ये z 0, हम तीनों कोऑर्डिनेट लेके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे x y है, ये हमारा टू प्लेन का बात हो गया। ऊपर वाले प्लेन में हमारा ये एक नया प्लेन है, इसमें सब में क्या होगा z होगा, तो ए सब में z है, और जो x के सामने में है y 0 तो ये हो गया 0 0 a, y के सामने में y है और z है, x के सामने में जो है वो x है, एंड यहाँ पर इसका क्या y में वेरिएशन नहीं है तो x है y 0 है एंड a है, एंड सब पे मास m है। तो हम इसका एक्सियम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सियम में क्या करते हैं m इंटू 0, यहाँ पे 0 है ये, m इंटू a, यहाँ पे a है, टोटल मास कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, हर पॉइंट पे हमने mm मास दिया, यानी टोटल मास कितना है 8 m इंटू a। अब इस यहाँ पे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो m इंटू a, ये जो है वो 0 है प्लस m इंटू 0, हमने 4 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो दिस इज ऑल्सो m इंटू a, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिस इज ऑल्सो m इंटू a, फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी x 0 है, m इंटू, तो इधर आएगा नहीं, फिर हम इसको m इंटू 0, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक और ये हमारा हो गया m इंटू 0, m इंटू a, m इंटू a, m इंटू a। Similarly, m into 0, this is also mass, m into 0, m into 0, and m into 0। तो हमारा 1 2 3 4 इसमें 0 आएगा, और 4 केसेस में आएंगे m into a, m into a, m into a, m into a, यानी 4ma अपॉन 8m, यानी a by, यानी ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं x से a/2 पे। सिमिलरली हम लोग YCM निकालेंगे, YCM में क्या होगा, y वाला लेंगे तो इसमें 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें देखो यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है, ये दोनों 0 हो गए, तो हम इसको लिखेंगे ये 0 हो गया, सिमिलरली ये 0 हो गया, यानी ये y का जो भी डिस्टेंस 1 2 3 और 4, 4 मास सिस्टम 0 हो गया, बाकी 4 में सब में y है, तो 4m इंटू a अपॉन 8m, तो YCM क्या आ जाएगा a/2। सिमिलरली हम लोग ZCM फाइंड आउट कर देते हैं, सबका कोऑर्डिनेट हमने लिया। ZCM हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ZCM में अब देखते हैं क्या क्या है हमारा, ये तो नीचे वाला कोई नहीं है, सब में 0 है, Z में सब, ये चारों में Z है, a, यानी 4m इंटू a अपॉन 8m इज इक्वल टू 8, यानी हमारा XCM क्या क्या आया, XCM बराबर a/2, YCM बराबर a/2, ZCM बराबर a। तो तीनों का पॉइंट कहाँ पे आया, कहीं बीच में, यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा a/2, a/2, यानी कि कोई एक साइमेट्रिक बॉडी है, हर तरह से जिसमें हर मास साइमेट्रिकली हर पॉइंट पे लोकेटेड है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके सेंटर पे होगा। तो क्यूब के केस में यहाँ पे क्या आया, इनका सेंटर ऑफ मास। तो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, सपोज कि यहाँ पे 2m मास है, यहाँ पे m मास है, यहाँ पे 3m दे देंगे, तो आपको पूछेंगे कि इनका XCM क्या है, YCM क्या है और ZCM क्या है, और हम लोग आसानी से सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट को डेजिग्नेट करके
और एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग अब देखो, सपोज ये कोई फ्लूइड है, दो टाइप का मिक्सचर का फ्लूइड है, ये ρ1 है इसकी डेंसिटी और दूसरी की डेंसिटी क्या है, ρ2। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2 है, दूसरा डिस्टेंस L/2 है। तो फिर हमको क्या इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, कहाँ से क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना आएगा, बट आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ से निकाला, उनका डेंसिटी क्या होगा, ओवरऑल डेंसिटी क्या होगा, मिक्सचर के बाद क्या होगा, मिक्सचर के बाद क्या क्या चेंजेस आएगा, ऐसा नहीं। तो एक्स एक्सिस हम लोगों को क्या पता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हमारा क्या है, ρ1 मास। अब चूंकि हमने इसको एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, जो कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हमें थिकनेस L/2 और L/2। एरिया को अगर यूनिट फॉर द यूनिट एरिया A बराबर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास बराबर A बराबर 1 तो थिकनेस L/2, यानी कि मास जो हमारा क्या आएगा, ρ1 L/2 m1। सिमिलरली इसको m1 बोलते हैं, इसको m2। सिमिलरली m2 हमारा क्या आएगा, ρ2 L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इधर चूंकि हमने एक ही थिकनेस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड वेरिएशन किया है। अब ये जो लेंथ है, अब ये सोचोगे ना कि यहाँ पे y का कुछ तो लेंथ होगा, देयर विल बी सम लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग उसको अगर उसको कंसीडर करेंगे तो फिर वही मिड पॉइंट ही आएगा। तो हम लोग एक्सीएम कैसे निकालते हैं, हम लोगों को क्या आता है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू बाई m1 प्लस m2। अब देखो ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, हमने क्या कहा, और ये एक स्क्वायर की तरह है, जैसे सिस्टम क्या है, इसलिए मैंने बीच में ये रेक्टेंगल नहीं समझना, इसको स्क्वायर समझना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे हो, यहाँ पे उसका क्या काम करेगा, यहाँ पे हो। सिमिलरली इसका पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी L/2 है तो ये कहाँ पे होगा, L/4 पे। ये कितने पे होगा, L/4 पे। तो L/2 प्लस L/4 ये कितना हो जाएगा हमारा, तो m1 को हम लिख सकते हैं m1 L/2 प्लस m2 L/2 प्लस L/4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3L/2 प्लस L/4। इसका ये L/4 है और ये क्या है, L/2 है, तो ये हमारा क्या आ गया, 3L/4, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, m1 L/2, m2 का पोजीशन क्या है, 3L/4 पे, और फिर क्या करते हैं, m1 और m2 को नीचे ऐड करते हैं। अब हमारा ये हमने लिख लिया, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना, इस तरह से अब क्या क्या सर, फ्लूइड का इंसर्शन कर दिया। हो सकता है इसमें टेम्परेचर के बारे में भी कभी कोई जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी उसका भी कुछ पॉइंट का इंसर्शन करके एक नया तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब हमारा क्या आ गया, m1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या है हमारा, ρ1 L/2। सिमिलरली L/2 इंटू डिस्टेंस क्या है, L/2, मास इंटू दिस थिकनेस, एरिया को हमने यूनिट लिया है। सिमिलरली ρ2 L/2 इंटू डिस्टेंस क्या लिया हमने यहाँ पे, 3L/4, चूंकि यहाँ से ये डिस्टेंस L/2 है, तो ये हमारा क्या, L/2 प्लस L/4, 3L/4। अब हम दोनों मास को ऐड करेंगे अपॉन m1 m2, ρ1 प्लस ρ2 इंटू, तो ये हमारा आ गया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा हमारा
रो 1 L स्क्वायर बाई 4 प्लस रो 2 3L स्क्वायर बाई 8 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ये बहुत बार जेई में भी नीट में भी तो कई बार आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप उनको देख सकते हो। तो रो 1 हम लोग L से L चला गया तो रो 1 L बाई 4 प्लस रो 2 3L बाई 4 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 3L बाई 8 है। L से L कैंसिल आउट हो गया हाफ। अब हाफ को भी कैंसिल कर सकते हो तो ये हो जाएगा रो 1 L बाई 2 प्लस रो 2 3L बाई 4। तो हाफ भी चला गया अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सियम। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि वाई के बारे में कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, कभी कभी कुछ लिखा नहीं रहता है, तो हमारा वाई से हम फाइंड आउट करने की, अगर मान लो कुछ होता, बहुत बड़ा सा कंटेनर होता, उसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ दिया होता, रेक्टेंगुलर होता, तो इन दैट केस हमको वाई से हम भी फाइंड आउट, वाई से क्यों कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एससी वर्मा में आप स्टार्ट कीजिए सेंटर ऑफ मास से। और उसमें कुछ डाउट होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके बाद हम लोग पूरा सीरीज पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का पूरा सीरीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, हॉलो स्फीयर का, सेमी सर्कुलर हॉलो स्फीयर का क्या होता है, सेमी डिस्क का क्या होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होगा, सॉलिड कोन का क्या होगा, हॉलो कोन का क्या होगा, रेक्टेंगुलर लामिना का क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमने बस छोटा छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल देके आपको बताया। एंड बाकी सारा आपका काम क्या है, बस वही कोऑर्डिनेट लेना है, m1x1 m2x2 ऐसा करके उसके बाद y1 का भी वैसे, z1 का भी वैसे निकालना है। तो ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस आप सेंटर ऑफ मास के कर सकते हो। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।